So today we are going to start consumption based planning. Okay. So consumption based planning is a MRP procedure. So first let us understand what is MRP and then we will discuss consumption based planning in detail. Now, MRP stands for Material Requirements Planning. Now, what is material requirements planning? So material requirements planning is nothing but planning requirements of materials. Okay. So in company, whenever they plan for production, they have to do this material requirements planning, or they need to plan the requirements of the material. So what exactly is the planning of requirements of the materials, or MRP, material requirements planning? So let us take an example. If there is a product X, okay, if there is a product X that a company manufactures. Now, for this manufacturing of X product, the raw material that is used is A. Okay, this is finished product, and this is raw material that is used to manufacture that finished product. Now, to manufacture this X products, suppose the company wants to manufacture 1,000 quantities of this X product in next 1 month. Okay. In next 1 month, the company wants to manufacture or produce 1,000 quantities of this product X. Right? So if they want to start today to manufacture the 1,000 products in the next 1 month, and suppose the production is going to happen only Monday through Friday. So let us assume there are 20 days on which production will run, right? So daily how much quantity they will have to manufacture? So daily production will be 1,000 divided by 20. 50 quantities they will manufacture on a daily basis. Okay, clear? Now, to manufacture these 1,000 quantities in the next 1 month or 30 days from now, if they are going to start it from today, right? So as on date, as on today, the quantity of this material A in stock must be greater than or equal to 1,000 quantities. तो अगर उनको 1 मंथ विदाउट एनी प्रोडक्शन स्टॉपेज अगर उनका प्रोडक्शन रन करना है, ये 1,000 क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करना है, तो ये का मिनिमम कितना स्टॉक उनके पास चाहिए? द क्वांटिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,000 इन स्टॉक. विदाउट एनी स्टॉपेज अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास ए का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,000 क्वांटिटी स्टॉक में होना चाहिए, तो मेरा प्रोडक्शन 20 डेज
बिना रुके चल सकता है, and these 1,000 quantities can be manufactured. So when the plan is available, जब उनके पास प्लान आता है कि हमको 1,000 क्वांटिटीज का प्रोडक्शन करना है आने वाले एक मंथ में, the first thing they do is check the stock of the raw materials required for production. Because अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो आपका ये जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा. So the first thing that the supply chain team or the planners team they will do is they check the stock of the raw materials that is required for the production. Suppose existing stock मेरे पास सिर्फ 500 क्वांटिटी, ठीक है. सो एग्जिस्टिंग स्टॉक मेरे पास जो अवेलेबल है इस रॉ मटेरियल का वो सिर्फ 500 क्वांटिटी, राइट. सो there is a shortage of 500 quantities as per my plan. तो एक महीने का अगर मेरा प्लान है 1,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का, तो मेरे पास रॉ मटेरियल सिर्फ 500 क्वांटिटी है. तो इस 500 क्वांटिटी के साथ मैं 1,000 मटेरियल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. 500 क्वांटिटी के साथ मैं 500 मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर सकता हूँ. इसका मतलब 10 डेज तक मेरा प्रोडक्शन जो है बिना रुकावट के चल जाएगा. 500 क्वांटिटीज का प्रोडक्शन हो सकता है. 11 डेज से मेरे पास शॉर्टेज रहेगा. आई विल नॉट बी एबल टू रन माई प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो स्टॉक इन द सेल. रॉ मटेरियल का स्टॉक ही मेरे पास नहीं. So to avoid this situation, when the plan is rolled off, the planners check the existing quantity of the raw materials and they determine the shortage quantities that are required for production. This shortage or the shortage quantities is what is called as a requirement quantity. इतने क्वांटिटी का मुझे रिक्वायरमेंट है, इतना क्वांटिटी मेरे पास कम है, इसका मेरे पास रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया. This is what I need to purchase from the supplier. हमने एक्सटर्नल P2P प्रोसेस में देखा था. The first step is determination of requirement quantities. So this is how the requirement quantities are determined. मेरे पास 500 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया. 500 क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है. So this is how the MRP process runs. This we don't have to do manually. When we run the MRP, system will calculate the requirement quantities or shortage quantities automatically based on the data that we maintain in the system for MRP. तो MRP के जो सेटिंग्स हम सिस्टम में मेंटेन करेंगे, उस सेटिंग्स को यूज करके MRP ये डिटरमाइन करेगा कि मेरे पास कितने क्वांटिटी का शॉर्टेज है. And that shortage is nothing but the requirement quantity. Understood? Clear? ठीक है. तो ये 500 क्वांटिटी का आप PR बनाओगे, तो ये MRP PR बनाएगा या प्लान ऑर्डर बनेगा, ठीक है. PR प्लान ऑर्डर या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूलिंग लाइंस. तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो किस केस में क्या बनता है. सो एक परचेस रिक्विजिशन बनेगा 500 क्वांटिटी का. देन दैट PR विल बी कन्वर्टेड इनटू PO, वो सप्लायर को दिया जाएगा.
देन यू विल डू द गुड्स रिसिप्ट। गुड्स रिसिप्ट होगा तो आपके स्टॉक में 500 क्वांटिटी आएगा। नाउ टोटल क्वांटिटी आपके पास 1000 हो गया। नाउ 10 दिन के बाद से आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रनिंग, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्शन का प्लान डिसाइड होता है, दे रन द एमआरपी। एमआरपी रन करके वो पता करते हैं कि रॉ मटेरियल्स का कितना क्वांटिटी हमको लगने वाला है। बेस्ड ऑन दैट they will start ordering the raw materials and they will make sure that the required quantities are available in stock in time। ठीक है, तो ये 10 दिन तक 500 क्वांटिटी का आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा। 11वें दिन के पहले 500 क्वांटिटी स्टॉक में आएगा। इस हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं। ठीक है, so this is the basic concept of the MRP। तो एमआरपी क्या करेगा? एमआरपी आपका प्रोडक्शन का प्लान चेक करेगा। ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक चेक करेगा। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी द रिक्वायरमेंट। एमआरपी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि कितना क्वांटिटी लगने वाला है एंड दैट इज डिटरमाइंड in the form of a purchase requisition, a planned order or a scheduling agreement schedule है। ठीक है, नाउ एमआरपी जब रन होता है तो सिस्टम पहले चेक करता है कि जो भी मटेरियल के लिए हम एमआरपी रन कर रहे हैं वेदर दैट मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस और वेदर वी आर गोइंग टू परचेज दैट मटेरियल फ्रॉम द वेंडर। तो इसका क्या इम्पैक्ट है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है या एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट है ऑन एमआरपी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट है। अगर हम मटेरियल को इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मतलब हमारे ही प्लांट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सो इफ दिस मटेरियल ए इज मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, उसको हम हमारे ही प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जब आप एमआरपी रन करते हो तो सिस्टम क्रिएट्स अ प्लान्ड ऑर्डर। बिकॉज उसका प्रोडक्शन होना है तो सिस्टम उसका प्लान्ड ऑर्डर बनाएगा और प्लान्ड ऑर्डर से उसका कन्वर्जन होगा प्रोडक्शन ऑर्डर में and that material will be produced and after production that will be received in the warehouse stock। तो ये 500 क्वांटिटी का हमारा शॉर्टेज आया सपोज, इसका एक प्लान्ड ऑर्डर बनेगा, उस प्लान्ड ऑर्डर का प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा। तो आज के दिन उसका प्रोडक्शन ऑर्डर बना। ठीक है, प्रोडक्शन होने में 3 दिन लगते हैं सपोज, तो 3 दिन बाद ये 500 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चौथे दिन वो आपके स्टॉक में अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर इन हाउस प्रोडक्शन है मतलब हमारे ही प्लांट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो एमआरपी रन होगा। 500 क्वांटिटी का शॉर्टेज आया, उसका एक प्लान्ड ऑर्डर बनेगा, वो प्लान्ड ऑर्डर का कन्वर्जन प्रोडक्शन ऑर्डर में होगा एंड उसका प्रोडक्शन कैरी आउट होगा। सर ये जो भी आपने बताया इन हाउस प्रोडक्शन होगा हम्म, तो सर उसका भी तो अगर भी मटेरियल चेक करना पड़ेगा ना, वो मटेरियल है कि नहीं वो भी। इसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल हाँ। होगा ना। ठीक है, विदाउट उसके होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी एमआरपी रन होगा, उसका भी स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। करेक्ट पॉइंट, क्लियर। ठीक है, तो जब एमआरपी रन होता है तो सब मटेरियल्स का एमआरपी रन होता है। तो अगर इसका शॉर्टेज है सपोज हमको ए बनाना है, ए बनाने के लिए बी मटेरियल चाहिए, बी का भी स्टॉक चेक होगा।
बी का स्टॉक 500 अवेलेबल है तो ही हम ये 500 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ शॉर्टेज है तो उसके लिए भी ऑर्डर किया जाए। ठीक है। अंडरस्टूड। दिस साइड इज क्लियर इन हाउस प्रोडक्शन का। यस। ठीक है। नाउ एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट मतलब इस मटेरियल को हम हमारे प्लांट में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इस मटेरियल को हम सप्लायर से परचेस करते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम इसका जब शॉर्टेज डिटरमाइन होगा तो इसका प्लान ऑर्डर भी बन सकता है और परचेज रिक्विजिशन भी बन सकता है। ठीक है। तो हाँ, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, प्लान ऑर्डर चाहिए या परचेज रिक्विजिशन चाहिए, उस हिसाब से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसका प्लान ऑर्डर भी बन सकता है, परचेज रिक्विजिशन भी बन सकता है। तो अगर प्लान ऑर्डर बना तो उसको हम परचेज रिक्विजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लान ऑर्डर बनेगा या परचेज रिक्विजिशन बनेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्लान ऑर्डर बना तो भी वापस उसका प्लान ऑर्डर हम का कन्वर्जन हमको परचेज रिक्विजिशन में करना ही पड़ता है। ठीक है। बिकॉज अगर सप्लायर को ऑर्डर करना है तो हमको परचेज रिक्विजिशन बनाना पड़ेगा, परचेज रिक्विजिशन का पीओ बनाना पड़ेगा। तो प्लान ऑर्डर क्यों बनाते हैं, अगर पीआर बनाना ही है तो प्लान ऑर्डर क्यों बनाते हैं। तो प्लान ऑर्डर जो प्लानर्स है, जो सप्लाई चेन के प्लानर्स है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मटेरियल प्लानिंग, दे विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर उनको कुछ प्लान में मॉडिफिकेशन है, दे नो द एग्जैक्ट फिगर्स, राइट। तो उनको अगर क्वांटिटी में कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लान ऑर्डर गिव्स देम प्रोविजन टू डू दैट चेंजेस। ठीक है। तो वो प्लान ऑर्डर में चेंजेस करके फिर उसका परचेस रिक्विजिशन बनाएंगे। देन दैट परचेस रिक्विजिशन इज कन्वर्टेड इनटू परचेस ऑर्डर और वो परचेस ऑर्डर सप्लायर को दिया जाता है। ठीक है। अगर हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का यूज कर रहे हैं तो अभी तक हमने शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को देखा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को देखेंगे। तो अगर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का हम यूज कर रहे हैं किसी मटेरियल के लिए तो उस केस में शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के शेड्यूल लाइंस हम जनरेट करते हैं यूजिंग एमआरपी। तो उस मटेरियल के लिए अगर एमआरपी रन किया तो उसके लिए पीआर या प्लान ऑर्डर नहीं बनता है, उसके लिए क्या बनता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइंस। ठीक है। तो ये जब हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट देखेंगे तो उस चैप्टर में मैं आपको एमआरपी रन करके दिखा दूंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज when we run MRP, the output of MRP will generate, क्या क्या जनरेट करता है, एक तो प्लान ऑर्डर जनरेट करेगा, दूसरा परचेस रिक्विजिशन जनरेट करेगा, तीसरा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइंस को जनरेट करेगा। These are called as procurement proposals. इसको क्या बोलते हैं एमआरपी टर्मिनोलॉजी में, प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। तो जब भी एमआरपी रन होगा आउटपुट में या तो आपको प्लान ऑर्डर मिलेगा या परचेज रिक्वेजिशन मिलेगा या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइंस मिलेगा। ठीक है। अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है या इन हाउस प्रोडक्शन है, कंपल्सरीली प्लान ऑर्डर्स ही बनेंगे, परचेज रिक्वेजिशन या पीआर यहाँ पे नहीं बनता है। एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग अगर है, सॉरी एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट अगर है
तो ये तीनों जनरेट हो सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक मिनट। हाँ, क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन, हाउ system will determine whether the material is for in-house production or external procurement? सिस्टम को कैसे कैसे पता चलेगा कि मटेरियल इन हाउस मैन्युफैक्चर होने वाला है या एक्सटर्नली प्रोक्योर करना है? यस, टेल मी। यस, प्रोक्योरमेंट टाइप पढ़ा है हमने। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट टाइप? कहाँ पे होता है प्रोक्योरमेंट टाइप? इंटरनल प्रोक्योरमेंट, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कहाँ पे देखा था हमने? ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में देखा था, ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। मटेरियल टाइप में देखा था। मटेरियल टाइप क्या क्या कंट्रोल करता है उसमें? मटेरियल टाइप कंट्रोल्स प्रोक्योरमेंट टाइप, मटेरियल इन हाउस मैन्युफैक्चर है या एक्सटर्नली प्रोक्योर करना है। OMS2 में देखा था हमने, याद करो। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर्स अलाउड, इंटरनल परचेस ऑर्डर्स अलाउड, ये देखा था हमने। सो इफ एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर्स आर अलाउड, इट मींस प्रोक्योरमेंट टाइप इज एक्सटर्नल। अगर ये नॉट अलाउड है तो प्रोक्योरमेंट टाइप इज इन हाउस, इंटरनल।
Clear? Understood? ओके तो यहाँ पे मटेरियल टाइप में जो भी मेंटेन हमने किया है उसके हिसाब से जब मटेरियल बनेगा तो मटेरियल में प्रोक्योरमेंट टाइप इन हाउस या एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट अपडेट होता है ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड. ठीक है, आई विल शो यू इन सम टाइम हाउ दैट वर्क्स नाउ. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द एमआरपी. ठीक है, जब हम एमआरपी रन करेंगे तो एमआरपी शॉर्टेज डिटरमाइन करेगा. सेकंड, जब हम एमआरपी को रन करेंगे तो उसका जो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स जनरेट होंगे वो प्लान ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइंस बन सकता है. प्रोक्योरमेंट टाइप से सिस्टम डिटरमाइन करेगा कि इन हाउस प्रोडक्शन है या एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट उस मटेरियल के लिए अलाउड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. नाउ वी विल डिस्कस प्लानिंग लेवल्स फॉर एमआरपी. ठीक है, अगर एमआरपी को रन करना है तो एमआरपी को हम कौन से लेवल पे रन कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लानिंग लेवल्स ऑफ एमआरपी. एमआरपी को हम प्लांट लेवल पे रन कर सकते हैं. एमआरपी को हम स्टोरेज लोकेशन लेवल पे रन कर सकते हैं. इसको एमआरपी एरिया भी बोला जाता है. एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग एमआरपी एरिया. प्लांट एज एमआरपी एरिया और स्टोरेज लोकेशन एमआरपी एरिया और सब कॉन्ट्रैक्टिंग एमआरपी एरिया. तो ये तीन लेवल पे हम एमआरपी को रन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक सेकेंड ना, दिस द स्क्रीन, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, sir. ठीक है, नाउ इफ यू सी हियर प्लानिंग लेवल्स फॉर एमआरपी, तो प्लांट लेवल पे हम एमआरपी को रन कर सकते हैं. सो इफ यू सी दिस फिगर, प्लांट विथ स्टोरेज लोकेशंस प्लान्ड सेपरेटली और एमआरपी एरियाज. सो एक तो हम प्लांट लेवल पे एमआरपी रन कर सकते हैं. दूसरा, वी कैन रन एमआरपी एट स्टोरेज लोकेशंस सेपरेटली. सो इफ यू सी दिस फिगर, एक तो हम प्लांट लेवल पे रन कर सकते हैं. अभी इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जांपल. या फिर हम स्टोरेज लोकेशन के लिए सेपरेट एमआरपी भी रन कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन के लिए ही हमको एमआरपी रन करना है तो भी हम कर सकते हैं. एंटायर प्लांट में जितने स्टोरेज लोकेशंस है वो सब के लिए एक साथ रन करना है वो भी हम कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्लांट लेवल. तो प्लांट लेवल पे अगर हम करेंगे तो जितने स्टोरेज लोकेशंस उसमें उसमें है वो लेवल पे एमआरपी रन होता है. अगर हम सिर्फ स्टोरेज लोकेशन पे एमआरपी रन करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव सब कॉन्ट्रैक्टिंग एमआरपी एरिया. तो वो क्या होता है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज एमआरपी एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एमआरपी एरिया मतलब क्या है,
एमआरपी को रन करने के लिए हम एक एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एमआरपी एरियाज पे एमआरपी रन करना चाहते हैं तो हम एमआरपी एरियाज को क्रिएट करते हैं। अगर हम एमआरपी एरियाज का यूज नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट योर प्लांट बिकम्स अ एमआरपी एरिया, ठीक है। जो भी प्लांट का कोड होगा दैट विल बी एमआरपी एरिया। बट अगर हमको एमआरपी एरिया का यूज करना है तो व्हाट इज एमआरपी एरिया? एमआरपी एरिया इज नथिंग बट you can group several storage locations for MRP run। एक प्लांट में 10 स्टोरेज लोकेशन है, तो उसमें से आप अगर एमआरपी एरिया का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लांट लेवल पे उसका एमआरपी रन कर सकते हो। मतलब जब भी एमआरपी रन करोगे सारे स्टोरेज लोकेशंस का प्लांट सिस्टम कंसीडर करेगा। अगर आपको एमआरपी एरिया का यूज करना है तो यू कैन ग्रुप द स्टोरेज लोकेशंस इनटू एमआरपी एरिया। तो जो दो स्टोरेज लोकेशन को आपको एक साथ एमआरपी रन करना है उसका आप एमआरपी एरिया बना सकते हो, या 3 स्टोरेज लोकेशन को आपको कंबाइन करना है और उनको एक साथ एमआरपी रन में कंसीडर करना है तो यू कैन क्रिएट अ सेपरेट एमआरपी एरिया फॉर दैट। सो एमआरपी एरिया इज नथिंग बट grouping of storage locations to run MRP together for those storage locations, ठीक है। तो अगर एमआरपी एरिया का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लांट बिकम्स योर एमआरपी एरिया बाय डिफॉल्ट। और अगर हम एमआरपी एरिया का यूज कर रहे हैं तो वी कैन डिफाइन एमआरपी एरिया और उस एमआरपी एरिया में हम अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्लांट के लिए एमआरपी सॉरी स्टोरेज लोकेशन पे एमआरपी एरियाज क्रिएट करते हो तो जो प्लांट का एमआरपी एरिया है उसमें स्टोरेज लोकेशन का एमआरपी एरिया कंसिडर नहीं होता है। अब ये बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, विद एन एग्जांपल वी विल डिस्कस, ठीक है। तो और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हम कुछ किसी मटेरियल का सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर के पास जो हमारा इन्वेंट्री पड़ा है उसको भी कंसिडर करके हम एमआरपी को रन कर सकते हैं। उसके लिए हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग एमआरपी एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ प्री रिक्विजिट्स फॉर कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग। तो अगर कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग को हमको रन करना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या सेटिंग्स हमको सिस्टम में मेंटेन करना पड़ता है। तो वी नीड टू डिसाइड द प्लानिंग लेवल फर्स्ट, whether we are going to run MRP on plant level or whether we are going to run MRP at storage location level or whether we are going to use the MRP areas for running the MRP, ठीक है। तो प्लानिंग लेवल प्लांट है या स्टोरेज लोकेशन है ये हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन इन कॉन्फ़िगरेशन इन SPRO we need to activate MRP for the plant in which we want to run the MRP। हमको जिस प्लांट में एमआरपी को यूज करना है वो प्लांट के लिए हमको एमआरपी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन वी नीड टू मेंटेन द प्लांट पैरामीटर्स फॉर एमआरपी फॉर दैट प्लांट। जिस प्लांट के लिए हमको एमआरपी रन करना है उस प्लांट के प्लांट पैरामीटर्स हमको सिस्टम में मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लांट पैरामीटर्स मतलब क्या? इट्स लाइक डिफॉल्ट और bare minimum settings that must be done to run the MRP। ये कुछ सेटिंग्स है जो एमआरपी रन होते हुए सिस्टम यूज करता है, दैट वी नीड टू मेंटेन। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिस भी मटेरियल का हमको एमआरपी रन करना है या एमआरपी रन में हमको जिस मटेरियल को कंसिडर करना है उस मटेरियल का मटेरियल मास्टर डेटा विथ एमआरपी व्यू इज मैंडेटरी। जिस मटेरियल का एमआरपी व्यू मेंटेन्ड है उसी मटेरियल को एमआरपी में सिस्टम कंसिडर करता है। जिस मटेरियल का एमआरपी व्यू मेंटेन नहीं है उस मटेरियल का हम एमआरपी रन नहीं कर सकते। क्लियर? अंडरस्टूड? तो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन अ प्लानिंग लेवल। इट कैन बी प्लांट और इट कैन बी स्टोरेज लोकेशन
or it can be MRP area. I'll explain you with an example. Then in configuration or in customizing, that is nothing but SPRO. SPRO first activate MRP for प्लांट. जिस प्लांट में आपको MRP रन करना है उसका MRP एक्टिवेट करो. देन मेंटेन द प्लांट पैरामीटर्स. And then most important, maintain MRP view or material master record. For which MRP for which we want to run the MRP. These are the prerequisites. ये होना चाहिए तभी हम MRP रन कर सकते हैं. Now we will discuss what we will discuss MRP areas. या प्लांट लेवल पे MRP रन कैसे होता है, स्टोरेज लोकेशन लेवल पे MRP रन कैसे होता है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज अपने पास एक प्लांट है AP11, right? And in that plant we have 3 storage locations, 1000, 2000, 3000. ठीक है. ध्यान देना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है. एक प्लांट है उसमें मेरे पास 3 स्टोरेज लोकेशन है और इन 3 स्टोरेज लोकेशन में जो क्वांटिटी है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, पहले स्टोरेज लोकेशन में सपोज 200 क्वांटिटी है, दूसरे में 300 क्वांटिटी है, तीसरे में 150 क्वांटिटी. So what is the total quantity at plant level? Yes. प्लांट लेवल पे टोटल क्वांटिटी कितना है? हेलो. प्लांट AP11 पे टोटल क्वांटिटी कितना है? 650. 650 sir. 500 प्लस 150, 650. 3 स्टोरेज लोकेशन का जो सम है वो मेरा प्लांट लेवल का स्टॉक होगा. ठीक है. करेक्ट. नाउ आई वांट टू रन MRP फॉर अ मटेरियल. मटेरियल क्या है? सपोज X मटेरियल इज देयर. इस X मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल है स्टोरेज लोकेशन 1000 में 200, 2000 में 300 और 3000 में 150. ओके. नाउ इस X मटेरियल के लिए मैं MRP रन कर रहा हूँ. सो व्हेन आई रन द MRP एट प्लांट लेवल पे मैं जब MRP रन करूंगा तो सपोज करो X का जो मेरा प्लान है प्रोडक्शन का वो है 1000 क्वांटिटीज. ठीक है. सो व्हेन आई रन MRP एट प्लांट लेवल, व्हाट विल हैपन? कितने का शॉर्टेज आएगा? 350. ठीक है. शॉर्टेज या रिक्वायरमेंट मेरा 350 का आएगा बिकॉज मेरा रिक्वायरमेंट टोटल 1000 का है. मेरे पास टोटल क्वांटिटी प्लांट में अभी 650 प्रेजेंट है, 350 का शॉर्टेज है, तो आई विल ऑर्डर 350 क्वांटिटीज. तो सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, जब हमने प्लांट लेवल एज MRP एरिया या प्लांट लेवल पे जब हम MRP एरिया कंसीडर करके MRP को रन करते हैं
तो क्या होता है, प्लांट में जितने सारे स्टोरेज लोकेशंस है वो सब का स्टॉक सिस्टम कंसीडर करती है एज अ अवेलेबल स्टॉक एंड दैट इज कंपेयर्ड विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एंड डिफरेंस इज कैलकुलेटेड। तो प्लांट लेवल पे एमआरपी रन करते हैं तो उसमें जितने सारे स्टोरेज लोकेशंस है उनका स्टॉक सिस्टम कैलकुलेशन के लिए यूज करता है, शॉर्टेज डिटरमाइन करने के लिए यूज करता है। दिस इज कॉल्ड एज एमआरपी एरिया इक्वल टू प्लांट। तो प्लांट लेवल पे एमआरपी रन करना मतलब उस प्लांट में जितने भी स्टोरेज लोकेशन है वो सबका क्वांटिटी सिस्टम कंसिडर करता है। क्लियर? नाउ वी विल सी स्टोरेज लोकेशन पे कैसे होता है। दिस इज प्लांट लेवल। नाउ सेम एग्जांपल, ठीक है, आई विल कॉपी दिस, अभी इसको हम करते हैं स्टोरेज लोकेशन लेवल। ठीक है, I want to plan the requirement quantities of storage location 3000 separately। ये जो स्टोरेज लोकेशन 3000 है इसके लिए मुझे अलग से एमआरपी रन करना है। प्लांट में 3 स्टोरेज लोकेशन है, उसमें से एक स्टोरेज लोकेशन को मुझे अलग से एमआरपी रन करना है। बाकी के लिए मैं प्लांट लेवल पे एमआरपी रन करूंगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हमको ये स्टोरेज लोकेशन का प्लानिंग अलग से करना है, एमआरपी रन इस स्टोरेज लोकेशन के लिए अलग से करना है, तो वी नीड टू क्रिएट अ एमआरपी एरिया फॉर दिस स्टोरेज लोकेशन 3000। तो इसके लिए सपोज हमने एक एमआरपी एरिया क्रिएट किया, उस एमआरपी एरिया का डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया, एमआरपी एरिया 3000। दिस विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एमआरपी एरिया। तो ये स्टोरेज लोकेशन को प्लान सेपरेटली करने के लिए हम एक एमआरपी एरिया को क्रिएट करेंगे। उस एमआरपी एरिया का डिस्क्रिप्शन होगा ये एमआरपी एरिया 3000 एंड देन you maintain the settings for running MRP for this material in this storage location in material master based on this MRP area। तो कैलकुलेशन कैसे होता है? Now if you want to run MRP for this material X, अभी भी रिक्वायरमेंट सपोज हमारा 1000 का है, ठीक है, और अगर हमने प्लांट लेवल पे इस X का MRP रन किया, प्लांट लेवल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट लेवल, नॉट एट स्टोरेज लोकेशन। प्लांट लेवल पे अगर हमने इस मटेरियल एक्स का एमआरपी एरिया अगर रन किया, रिक्वायरमेंट अभी भी 1000 का है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है वो 650 है तीनों स्टोरेज लोकेशन का मिला के। तो अगर मैं प्लांट लेवल पे अभी एमआरपी रन करता हूँ तो कितने का शॉर्टेज आएगा मेरा? $500 sir। कैसे? 350 का है। 500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज when we plan any storage location for separate MRP run, इसके लिए हमने एक अलग MRP एरिया क्रिएट किया, तो इसका MRP अलग से रन होने वाला है। तो जिस किसी के लिए हमने अलग से प्लानिंग किया है स्टोरेज लोकेशन के लिए, उस स्टोरेज लोकेशन को सिस्टम प्लांट लेवल के MRP रन में कंसिडर नहीं करता है, बिकॉज इसका जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है वो हम अलग से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे तो एक्स्ट्रा बाइंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जिसका एमआरपी एरिया अलग से क्रिएट किया हुआ है जिस स्टोरेज लोकेशन का,
उसको प्लांट लेवल में सिस्टम कंसिडर नहीं करता है। तो जब हम प्लांट लेवल पे रन करेंगे तो सिस्टम सिर्फ ये 2 स्टोरेज लोकेशन के क्वांटिटी को कंसिडर करेगा, विच इज 500। तो 500 स्टॉक में है, 1000 का रिक्वायरमेंट है, 500 का शॉर्टेज जनरेट होगा। ये हो गया प्लांट लेवल पे। अभी हम एमआरपी एरिया लेवल पे इसको रन करेंगे स्टोरेज लोकेशन लेवल पे। इस स्टोरेज लोकेशन का एमआरपी रन अगर मुझे करना है तो उस टाइम पे इस स्टोरेज लोकेशन का रिक्वायरमेंट हमको देखना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पे अवेलेबल 150 है, बट इस स्टोरेज लोकेशन का जो हमारा प्लान है वो सपोज 500 का है। तो हमने अगर एमआरपी रन किया तो कितने का शॉर्टेज आएगा? 350। 350। क्लियर, अंडरस्टूड? तो जैसे प्लांट लेवल पे सारे स्टोरेज लोकेशन का स्टॉक क्लब करके सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ चेक करता है और शॉर्टेज डिटरमाइन करता है, वैसे किसी पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन को हमको रन करना है तो उसके रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन के क्वांटिटी को चेक करके उसका शॉर्टेज डिटरमाइन होता है। सर ठीक मोस्ट है, ऑफ द इंडस्ट्रीज में प्लांट लेवल पे किया जाता है या एरिया लेवल पे? अभी ये उस कंपनी के प्लानिंग पे डिपेंड करता है, हाउ दे प्लान देयर रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन दैट इट इज डिटरमाइंड। तो एमआरपी एरिया लेवल पे कम होता है, मैक्सिमम जो होता है वो प्लांट लेवल पे ही होता है। आपको मैक्सिमम, अगर मिनिमम और मैक्सिमम का बात करेंगे तो मैक्सिमम प्लांट लेवल पे होता है। कुछ कुछ जगहों पे आपको एमआरपी एरिया लेवल पे भी दिखाई दे सकता है, बट मैक्सिमम प्लांट लेवल पे ही होता है। तो जब हम प्लांट लेवल पे एमआरपी रन करते हैं, बाय डिफॉल्ट एमआरपी एरिया इक्वल टू प्लांट, सिस्टम एक डिफॉल्ट एमआरपी एरिया क्रिएट करता है विद द नेम ऑफ प्लांट। तो एमआरपी रन करते समय हमको एमआरपी एरिया डालना पड़ता है। तो अगर प्लांट लेवल पे है तो जो भी आपका प्लांट है, इन दिस केस और प्लांट इज AP11, तो एमआरपी एरिया उसके लिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट करता है और उसका नाम AP11 ही होता है। उसको हम बोलते हैं प्लांट एज एमआरपी एरिया। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस?